earthwork in excavations. We have started the calculations of earthwork in excavations. We have also started the calculation of PCC and UCR first and second step. Okay. So in same way, we have gone through one room plan. We have gone through two room plan. And now there is a little bit again more difficulties. Three room plan. Okay. So in this three room plan, first we will find out or we will calculate the different things. First we will find out or we will draw the long wall short wall methods. May first we will draw or identify which one will be the long wall and which one will be the short wall. Okay. And we will find out the different things. ठीक है ना इसमें first thing it has been there the first we have to see properly the plan which has been mentioned. It is a three room plan in which kitchen it is having a dimensions of 3 by 4 meters, whereas a bedroom it is having a dimension of 3.5 by 4 meters. Living room it is having a dimensions of 4 by 3.5 meters, whereas there is the walls, the width of wall it has been mentioned in this section. The width, what is the width of wall which has been mentioned in the sections? The brick masonry in cement mortar that is equals to 0.23 centimeters thick. ठीक है ना, that is 230 mm. ठीक है, or it is in mm. We can have this in meters also. ठीक है ना, 0.23 it is actually meters. So 0.23 meters thick, that is brick masonry. Whereas different things are given. PCC it is also given as 0.15. You can see a small thickness of PCC as 0.15 at the bottom. Whereas UCR first step it has been given as 0.6 and second step it has been given as 0.45. Okay. Whereas width of excavation is not given or width of PCC is not given. So I have stated here separately as width of excavation as 1 meters. Okay. Now what is the width of excavation in this case? It is 1 meters. Okay. So first of all, we will find out the PCC, UCR first step, second step, and in today's important lecture is we will find out the मुरुम filling. ठीक है ना, यहाँ पे जो मुरुम filling दिख रहा है आपको ये boulders में that is the oval shape में जो दिख रहा है ये मुरुम filling. So we will find out this quantity of murum filling also in today's lectures. So this quantity is very important. And we will revise the quantities which we have already calculated in previous lecture, that is earthwork and excavation, PCC, UCR first step and second step. ठीक है ना. So one by one we will see. For before that we have to draw a center line plan. उससे पहले मैं क्या ड्रॉ करना है आपको, सेंटर टू सेंटर प्लान. ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर लाइन प्लान कैसे ड्रॉ होगा? तो किचन से जो यहाँ पे वॉल दिख रही है तो यहाँ से क्या होगा, सेंटर लाइन ऑफ दिस वॉल जो वाई डायरेक्शन में वहां से एक लाइन पास होगी. नेक्स्ट एक लाइन कहाँ से पास होगी? किचन का यहाँ से पास होगी. फिर बेडरूम से एक पास होगी. फिर एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, सबसे टॉप में एक सेंटर लाइन पास होगा. फिर उसके बाद में एक बॉटम में अगेन सेंटर लाइन पास होगा. और प्लान यहाँ पे जो बॉटम में एक्स डायरेक्शन में जो है वहां से एक सेंटर लाइन पास होगा. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर ऑल दिस. ठीक है, तो आप किचन से अगर पास कर रहे हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस 3 मीटर्स इज द इंटरनल डायमेंशंस इन एक्स डायरेक्शन. तो अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, 3 प्लस प्लस 0.23. ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स नहीं है मीटर्स है, 0.23. ठीक है, तो 3 प्लस 0.23 कितना होगा, 3.23. ठीक है ना, तो किचन का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन क्या बन जाएगा, 3.23. वैसे बेडरूम का क्या बनेगा, देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3.5 प्लस 0.23 कितना होगा, 3.5 प्लस 0.23. यस, 3.5 प्लस 0.23 फॉर बेडरूम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा बताओ. 3.73. 3.73. यस, 3.73. 3.73. ठीक है, तो बेडरूम का एक्स डायरेक्शंस में निकाल लिए, किचन का एक्स डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिए. वैसे बेडरूम का भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल दिए एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, अब और एक एक्स डायरेक्शन में देखो यहाँ पे नीचे लिविंग रूम का सबसे पहले सब पूरे एक्स निकाल लो, फिर वाई निकालेंगे अपन. ठीक है, अब लिविंग रूम का भी एक्स देखो, 4 मीटर्स इज द इनर टू इनर डायमेंशंस फॉर दिस, है ना. लिविंग रूम का अंदर से अंदर डायमेंशन क्या है, 4 मीटर्स. अगेन वॉल थिकनेस क्या है, 0.23 मीटर्स. ठीक है, तो 4 अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, 4.23. ठीक है ना, लिविंग रूम का. वैसे अब वाई डायरेक्शंस में देखो, वाई डायरेक्शन में क्या रहेगा, किचन और बेडरूम एक ही लाइन में आ रहा है वाई डायरेक्शन में. ठीक है, किचन और बेडरूम एक ही लाइन में वाई डायरेक्शन में आ रहा है. इसका विड्थ कितना है, किचन और बेडरूम का दोनों का विड्थ है 4 मीटर्स. तो अगेन किचन के लिए और बेडरूम के लिए क्या होगा, 4 प्लस 0.23 दैट इज 4.23. वैसे लिविंग रूम के लिए क्या रहेगा, देखो वाई डायरेक्शंस में थोड़ा सा वो करो, मेरे पास ड्राइंग भी है बट ये थोड़ा सा आपसे मतलब आंसर्स लेना है इसलिए, बट आई एम हैविंग द ड्राइंग फॉर दिस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की मेरे पास भी ड्राइंग है.
तो 3.5 प्लस 0.23 क्या होगा 3.73। तो लिविंग रूम का भी वाई डायरेक्शन में क्या बन गया 3.73। अब इसमें ये डिसाइड करना है कि विच वन इज द लॉन्ग वॉल एंड विच वन विल बी द शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो अब इसमें देखो लॉन्ग वॉल कौन से होंगे और शॉर्ट वॉल कौन सा होगा। ठीक है, तो आप बताओ लॉन्ग वॉल कौन सा रहेगा, शॉर्ट वॉल कौन सा रहेगा। यस, any suggestion for this, which one we will consider as long wall and which one we will consider as short wall। सर किचन और बेडरूम वाला सेम साइज है, दोनों को लॉन्ग वॉल कंसीडर कर सकते हैं अपन L1 करके। एक्स डायरेक्शन में लॉन्ग वॉल रहेगा कि एक्स वाई डायरेक्शन डायरेक्शन। में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में ये किचन और बेडरूम की वॉल बड़ी आ रही है ना पूरी। अच्छा अच्छा, अगर आप वाई डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है ना, आपने तो बता दिया कि किचन और बेडरूम की डायरेक्शंस में बड़ी आ रही है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, एक्चुअल में वाई डायरेक्शन में बड़ा आ रहा है। देखो आप कैलकुलेशंस करो, वाई डायरेक्शन में देखो 4 था किचन का वेट, बेडरूम का प्लस 0.23 था, है ना, 4.3 प्लस 3.73। तो along y direction it is larger, it is having a larger dimensions in y directions as compared to x direction. So why we have not taken that is along why we have taken along x direction as the long wall? Any suggestion for this? सर वो हालांकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, यस यस, वो साथ में दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं ना अपन, किचन का भी और बेडरूम का, और जो बीच में वॉल आ रही है दोनों साइड में जो आ रही है। अब दूसरा एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि while deciding long wall and short wall, one thing it is clear that जब लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में डिसाइड करना है कि अब यहाँ पे देखा जाए तो लेंथ वाई डायरेक्शन की बड़ी थी, बट मैंने वाई डायरेक्शन को शॉर्ट वॉल इसलिए बोला हूँ और एक्स डायरेक्शन में कम होने के बावजूद भी इसको लॉन्ग वॉल क्यों कंसिडर किया हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, वाई एक्स डायरेक्शन में इट इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेकअप, कोई ब्रेक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ब्रेकअप बिना ब्रेकअप के एक लेंथ है जो किचन और बेडरूम की एक्स डायरेक्शन में पूरा कंटिन्यू हो रही है, ऐसे एक दो कंटिन्यूअस लेंथ है। वेरएज लिविंग रूम का थोड़ा सा कम है, बट ये दोनों कंटिन्यूअस है। बट अगर मैं वाई डायरेक्शन में लेता हूँ तो सिर्फ एक ही लाइन कंटिन्यूअस है, बाकी डिवीजन से देखो, एक डिवीजन यहाँ पे आ गया, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर लाइन में आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। वाई डायरेक्शन में देखो ये तो एक था कंटिन्यूअस लाइन, बट यहाँ पे एक लाइन डिवीजन हो गया, फिर दूसरा लाइन फिर डिवीजन हो गया, फिर थर्ड लाइन डिवीजन हो गया। मतलब डिविजन्स जो हो रहे हैं ये वी आर कंसिडरिंग दिस एज शॉर्ट वॉल, और कंटिन्यूअस है तो वी आर कंसिडरिंग दिस एज लॉन्ग वॉल। इवन दो माइनर चेंज इज देयर, माइनर मतलब लेंथ वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है कि थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में बड़ा है और एक्स डायरेक्शन में छोटा है, फिर भी मगर कंटिन्यूअस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे देखो ये दो कंटिन्यूअस है और एक है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में डिविजन ज्यादा है, तो जहाँ पे डिविजन ज्यादा होते हैं और वी विल कंसिडर दिस एज द शॉर्ट वॉल। ठीक है, जहाँ पे डिविजन ज्यादा होते हैं वी कैन कंसिडर दिस एज शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल? आसिफ, फुलनास, नो सर। नो सर। शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल के बाइफर्केशन में एनी कंफ्यूजन, व्हाई वी हैव कंसीडर्ड इन एक्स डायरेक्शन एज लॉन्ग वॉल एंड व्हाई नॉट वाई डायरेक्शन वी हैव कंसीडर्ड एज लॉन्ग वॉल? तो ये मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट में डिस्क्राइब किया आपको कि वाई डायरेक्शन में डिवीजन से, डिवीजन इन द सेंस मतलब ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो चुके हैं वॉल्स, तो इसलिए वी हैव कंसीडर्ड एज शॉर्ट वॉल। बट एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, डिविजन्स नहीं है, कंटिन्यूअस है, मिलने के बाद एक ही लाइन में हो रहा है वो, है ना, एक ही लाइन में हो रहा है, तो इसलिए वी हैव कंसीडर्ड एज एक्स एज लॉन्ग वॉल एंड वाई एज short wall, even though the length of long wall is small, it is little bit less as compared to short wall। ठीक है, थोड़ा सा कम है, फिर भी वी आर कंसिडर्ड एज इन एक्स डायरेक्शन एज लॉन्ग वॉल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आज के इसमें। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ सर, अभिनव सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, सर जैसे एक्स डायरेक्शन में तो वो मतलब हाँ, जो पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं उसमें, तो उसके हिसाब से करना है कि जैसे लेंथ के हिसाब से करना उसमें ऐसा करना है, जब भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल डिसाइड करेंगे, अगर पॉइंट्स आ रहे हैं ठीक है,
अगर समझो यहाँ पे एक ही पॉइंट आ रहा था, ठीक है ना, बट यहाँ पे अगर सपोज करो कि और एक पॉइंट आता है, मगर वो एक ही लाइन कंसिडर हो रही है, कंटिन्यूअस होना अपने को। लॉन्ग वॉल कंसिडर करने के लिए कंटिन्यूअस आना। कंटिन्यूअस ऐसे कितने हैं अपने पास, एक्स डायरेक्शन में 2 कंटिन्यूअस है और थर्ड थोड़ा सा है, बट वाई डायरेक्शन में देखो कंटिन्यूअस कितने हैं, एक ही कंटिन्यूअस है, बट ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, बट ये वाई डायरेक्शन में एक ही कंटिन्यूअस है, दोनों क्या है, डिविजन से, ठीक है ना, ये दोनों डिविजन हो गया, S1 का और S2 का, और ये S1 का ये S2 का, ये डिविजन हो गया। तो जिसके वजह से कंटिन्यूअस जब देखेंगे आप, तो कंटिन्यूअस एक लाइन में जितने ज्यादा रहेंगे उतना मेरे लिए कैलकुलेशन आसान जाएगा और फायदा होगा, ठीक है। इसलिए वी हैव कंसिडर्ड एज लॉन्ग वॉल इन एक्स डायरेक्शंस एंड शॉर्ट वॉल इन वाई डायरेक्शंस, ठीक है। अगर किसने सपोज सपोज अगर वाई डायरेक्शन में भी लॉन्ग वॉल ले लिया और एक्स में शॉर्ट वॉल ले लिया, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब नहीं चेंज होगा उसमें, ऐसा ज़्यादा मतलब ये मत लो कि ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर किसी से अगर नहीं होता, ओके, अगर किसी ने समझो वाई डायरेक्शन में ले लिया शॉर्ट वॉल, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में ले लिया लॉन्ग वॉल और एक्स डायरेक्शन में शॉर्ट वॉल ले लिया, और इसका नाम दे दिया जैसा 3.23 जो होता है एक डायमेंशन, उसको एक इंस्टेड ऑफ एडिशन उसने क्या नाम दे दिया, 3.223 का एडिशन करने के बगैर S1 बोल दिया, S2 बोल दिया, S1 S2 S1 ऐसा करके कर दिया, तब भी वो जाके कैलकुलेशन सेम ही हो जाएंगे। सिर्फ मेरा जो एम है, ये सारे कैलकुलेशंस में इम्पोर्टेंट इज लॉन्ग वॉल कंसिडर करो, शॉर्ट वॉल कंसिडर करो, मगर पूरे वॉल्स आप इंक्लूड करना है, एक भी वॉल आपका मिस नहीं होना है, एक भी वॉल कैलकुलेशंस में वी शुड नॉट मिस एनी वन वॉल, ठीक है ना। जब कैलकुलेशंस होंगे सारे वॉल लेना है आपको, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मतलब ये इसमें ये था कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट द प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहली चीज विड्थ ऑफ एक्सकेवेशंस, दिस वी हैव कैलकुलेटेड दिस। अब यहाँ पे मैंने जो था अपने सेंटर डिस्टेंस निकाले थे, वहीं से अपने कैलकुलेट भी कर दिए थे। अब इसका एडिशन कर दो, एल का एडिशन करो, 3.23 प्लस 3.73 कितना आएगा, यस कितना आएगा, 6.96। 6.96। तो यहाँ पे लिख दिया देखो मैंने, L1 इज इक्वल्स टू 3.23 मीटर्स प्लस 3.73 मीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू 6.96 मीटर्स। सेम वे L2 देखो, L2 एक ही है, L1 कितने हैं देखो, L1 कितने हैं एक्स डायरेक्शन में 1 2, ठीक है 2 है, बट L2 एक डिफरेंट डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में था, बट डिफरेंट लेंथ का था, तो जिसकी लेंथ की क्या हो गया, L2 की कितनी होगी 4.23। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4.23, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट 4.23, ठीक है। नेक्स्ट S1 देखो, अब डिविजन्स में S1 देखो, अब वंस वी हैव फाइंड आउट L1, L1 पूरे कंप्लीट हो गया क्या देख लो, तो L1 ये पूरा एक कंटिन्यूस हो गया, ये एक L1 कंटिन्यूस हो गया और L1 L2 हो गया, मतलब ये L1 और L2 कंप्लीट हो गया एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे ऊपर में वाई डायरेक्शन देखो, S1 4.23 का जो नाम दिए थे अपन ने 4.23 लेंथ के लिए S1 दिए, तो S1 कितने हैं 1 2 3, देयर आर 3 नंबर्स ऑफ S1 which is having a length of 4.23, ठीक है। अब S2 क्योंकि इसके लेंथ डिफरेंट है, जितने लेंथ डिफरेंट होते जाएंगे उसके नाम बढ़ते जाएंगे, S1 S2 S3 S4 S5 S6, जितना बड़ा प्लान होगा, जितना बड़ा बिल्डिंग प्लान होगा, उतने डिविजन ज्यादा होते जाएंगे, L1 L2 L3 L4 L5 L10 L11 जितने भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो जितना वेरिएशन इन लेंथ उतने वेरिएशन इन नेम्स गिवन टू दैट, ठीक है। तो S1 और S2 की लेंथ कितनी होगी देखो, दूसरा एक वेरिएशन था S2 में, तो 3.73 आ गया S2। अब नेक्स्ट आज के प्रॉब्लम में और एक काम करना है आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ दिस फिगर। ये फिगर का पूरा फिगर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताओ मेरे को क्या होगा। चलो कैलसी निकालो और कैलकुलेशंस करके बताओ, व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दिस कंप्लीट फिगर, कंप्लीट with all additions of long wall and short wall and the numbers, उसकी लेंथ सब मिला के टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल बताओ कितना आएगा, निकालो कैलसीज, कैलकुलेट करो, यस यस तो 38.3 मीटर 38.3 मीटर सब कर लिए पूरा हाँ। ओके, मेरे पास भी है इसके कैलकुलेशंस, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। और किसी का आंसर कोई बियॉन्ड दिस
आसिफ के अलावा और किसी ने आंसर्स निकाले? टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना रहेगा ये फिगर का? मेरे पास जो डॉटेड फिगर है, टोटल बताओ, टोटल कितना रहेगा लेंथ? क्योंकि ये भी पूछता है फाइंड आउट द टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द गिवन फिगर, क्वेश्चंस में पूछता है 2 मार्क्स के लिए। 38.3। ठीक है, 38.3। और किसी का कोई हाँ सर। आंसर? पूजा, जुनेद, 38.3 आ रहा है सबका? अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूँ, देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ में क्या क्या आएगा? 2 L1 आएगा, 1 L2 आएगा, 3 नंबर्स ऑफ S1 आएंगे, 2 नंबर्स ऑफ S2 आएगा। थोड़ा सा लाइन इस पे इनसफिशिएंट थी तो यहाँ पे आगे कैलकुलेशंस नहीं हुआ, बट आपका जो आंसर है वो आंसर क्या है? इट इज, मेरे पास है क्या देख लेता हूँ। यस, उसका आंसर है मेरे पास। यस, 38.3 3। 24 आ रहा है। 38.24 और 38.3 करेक्ट क्या रहेगा? 38.3 आ रहा है। 38.3 आ रहा है। Okay, 38.3 is the total center to center distance of this figure, ठीक है ना? तो I will write down the statement here, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आपको फुल फॉर्म में लिखना है। सेंटर टू सेंटर, या फिर यहाँ पे लिख दो टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और लेंथ इज इक्वल टू 38.3 meters. So this statement is very important, ठीक है ना? Because we have to write down this statement, and this statement is carries 2 to 3 marks. In some of the question papers it has been asked, first we have to find out, divide the whole figures into long wall short wall, उसके बाद फिर टोटल लेंथ कितना आएगा वो भी बताओ आप। तो ऐसा एक थोड़ा कैलकुलेशंस लिखने के बाद we have to find out this distance as we have calculated as total center distance as 38.3। ये भी चीज यूज होगी आगे चल के सेंटर लाइन मेथड्स में, वो भी मेथड आगे यूज होगा। ये डिस्टेंस से मालूम करेंगे अपन। सेकंड मेथड, जैसे मैंने आपको रिकॉल हो रहा होगा, 2 मेथड बताया था। पहला मेथड क्या था? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। सेकंड मेथड क्या था? याद होगा आपको, डिटेल मेथड में निकालने का सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड्स। तो वो मेथड के लिए ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वो मेथड के लिए, बट क्वेश्चन में पूछा है तो अभी आपको, इवन दो वी आर यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, वी आर फाइंडिंग आउट दिस लेंथ, बट एक्चुअल में ये लेंथ यूज होता है सेंटर लाइन मेथड्स में, ठीक है ना? एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होता है, नंबर 2 सेंटर लाइन मेथड होता है। तो उसकी भी प्रॉब्लम्स लेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। दोनों के आंसर सेम आएंगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है? दोनों के आंसर सेम रहेंगे क्योंकि उसके मेथड्स ही वैसे मतलब बना है कि दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है? तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशंस। तो एक्सकेवेशंस, ठीक है? तो एक्सकेवेशंस में सबसे पहले मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का फॉर्मूला यूज करूंगा। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल? क्या फॉर्मूला यूज होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन। यस, प्लस विड्थ ऑफ सेक्शंस, ठीक है? तो अब L1 जो नाम दिया था वही L1 मैं यहाँ पे नाम दूंगा, L1 दैट इज इक्वल्स टू, और लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल नाम दो लो। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, L1 यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में भी यूज कर रहे हैं आप, ठीक है? एक्चुअल में ये स्मॉल L1 रहता है, ठीक है? तो बट उसमें कंफ्यूज मत हो। क्या है फॉर्मूला? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन। ये फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है? फॉर्मूला याद है ना सबको, ठीक है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ सेक्शंस। व्हाई वी हैव टेकन प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन? बिकॉज एडिशन, एक में विड्थ ऐड करेगा, शॉर्ट वॉल में विड्थ माइनस होगी, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं बार बार, ठीक है? L1 का डिस्टेंस अभी निकाले थे अपन ने, ऑलरेडी निकला हुआ है अपने पास, क्या है? 6 पॉइंट कितना है? 96 प्लस 6.96। 6.96। विड्थ ऑफ सेक्शन बताओ कितना है? विड्थ ऑफ सेक्शन, अब एक्सकेवेशन का विड्थ मैंने स्टेटमेंट में लिखा था, यहाँ पे वो फिगर में गिवन नहीं था इसलिए स्टेटमेंट में लिखा था। विड्थ ऑफ सेक्शन कितना है अपने पास एक्सकेवेशन का? कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर। टोटल कितना होगा? 7.96 7.96। मीटर। ऐसे लॉन्ग वॉल कितने हैं मेरे पास? फिगर में देखो, फिगर ऊपर के फिगर में देखो कितने हैं? L1 कितने हैं? L1 कितने हैं? 2 नंबर्स, ठीक है? 2। 7.96 is the distance for this. What is the width of section? Width of section is 1 meter. 1
Next is 1. important is what is height of earthwork in excavations. Here height 1.10. indirectly given. Yes, 1.10. Yes, 1.10 है. बेस से लेके यहाँ तक जो रहेगा वो हाइट रहेगा, that is 1.10. Here 1.10 कितना आएगा बताओ? 17.512. 17.512. Yes, yes. We are having the distance as 17.512. ठीक है. And it is measured in meter cube. काय में मेजर होगा? मीटर क्यूब में. सेम. अब L2 है मेरे पास. अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन सेम फिगर होगा L2. अगेन द सेम फॉर्मूला मैं फिर से नहीं लिखूंगा. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा. L2 into L2 plus width of section. What is L2? L2 in this case is 4.23 4.23. plus width of section जिससे 4.23 कितना आएगा? 5.323 आ गया. 5.23. ऐसे L2 कितने हैं फिगर्स में देखो? 1. 1. 1 एक का कितना है? 5.23. विड्थ कितना रहेगा? 5.23. सेम 1. हाइट कितना रहेगा? सेम 1.1. कितना आएगा बताओ? 5.753 5.753. यस 5.753. करेक्ट. नाउ इंपॉर्टेंट इज शॉर्ट वॉल S1. ठीक है ना. अब S1 का मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ क्योंकि मैं अभी यूज कर रहा हूँ उसको ना. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस और माइनस. शॉर्ट वॉल में क्या रहेगा? प्लस और माइनस? Minus. माइनस विड्थ ऑफ सेक्शंस. ठीक है, माइनस विड्थ ऑफ सेक्शन. अब S1 जिसका नाम दे रहे हो आप उसका लेंथ कितना है? 4.23. S1 का कितना है? यहाँ पे 23. लिखे थे 4.23 माइनस 1.0 कितना होगा? 3.23. 3.23. ऐसे कितने 3.23 शॉर्ट वॉल है? 3. 3 3 3 नंबर्स. एक का कितना है? 3.23. एक का कितना है? 3.23. 1 सेम रहेगा वो विड्थ ऑफ सेक्शंस. हाइट भी सेम रहेगी. कितना आएगा? 10.659 10.659. 659. करेक्ट. अब S2 अगेन द सेम फॉर्मूला यूज फॉर दिस इज S2. अब S2 में मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा डायरेक्ट. S2 वैल्यू इज S2 कितना है देखो? शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस 3.73 3.73 माइनस 1.0 कितना होगा? 2.73 2.73. 2.73 मीटर्स. ऐसे कितने नंबर्स है? 2. S2 कितने नंबर्स है? 2 2 2.73. ठीक है. अगेन 1 विथ हाइट 1.1 कितना आएगा? 6.006 6.006. 6.006. अब इसमें देखते जाओ कि मैंने पूरी चीज कवर किया कि यहाँ पे एडिशन भी करते जाओ. 2 3 3 ये हो गए. 3 और 3 6 7 8 8 नंबर्स है क्या मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8. यस 8 नंबर्स. मतलब मैंने पूरा कवर कर लिया. ठीक है ना. एक भी वॉल छूटना नहीं है. लॉन्ग वॉल भी और शॉर्ट वॉल भी. एक भी वॉल छूट गई तो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया. ठीक है. तो वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स. यहाँ पे पूरे मैंने जो नंबर्स लिखा हूँ उसमें पूरे वॉल्स कवर्ड हो गया अपने पास. अब इसका एडिशन बता दो कितना होगा? 39.93. 39.93 प्लस दिस कितना आएगा? 39.93. यस करेक्ट. अब लास्ट में लिखना भूलना नहीं है कि द यूनिट फॉर द अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन. ठीक है ना. ये एक्सेल शीट है, थोड़ा सा यूनिट नहीं लिख सकता हूँ बट इट इज अज्यूम दैट इट इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब. क्वांटिटी के में भी जब भी क्वांटिटी लिखेंगे उसके आगे में मीटर क्यूब लिखेंगे और टोटल क्वांटिटी के आगे में भी मीटर क्यूब लिखेंगे आप. ठीक है. तो वो थोड़ा सा आपकी तरफ से आप लिखना है जब भी लिखेंगे. ये रिकॉर्ड बुक्स में बोलो जहाँ पे भी लिखेंगे तो मीटर क्यूब. ठीक है. अब पीसीसी. ठीक है. पीसीसी अगेन पीसीसी का लिए वो फार्मूला रहेगा जो अभी का L1 वाला जो फार्मूला. दिमाग में चल रहा तेरा पढ़ाई में. आवाज रिपीट हो रही है. 2 मिनट. ओके. हाँ तो L1 द सेम फार्मूला इज यूज. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही रहेगा. वही L1 का फार्मूला सेम रहेगा विड्थ ऑफ सेक्शन तक. ठीक है. तो मैं वो सेम फार्मूला यहाँ पे पेस्ट करता हूँ पीसीसी के लिए भी. अब पीसीसी के लिए क्या रहेगा? 6.96 प्लस व्हाट इज विड्थ ऑफ पीसीसी? मीटर. यस 1 मीटर. 1 मीटर्स. ठीक है. थोड़ा सा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और पीसीसी सेम आता है. ठीक है. सिर्फ हाइट डिफरेंस चेंज होता है ना. तो अगर ये दो चीज एक साथ पूछता है तो प्लस पॉइंट अपने लिए क्या है कि दोनों काम एक साथ जल्दी में आसान फास्ट हो जाते हैं ना. तो 7.96 तो मैं एज इट इज ले लूंगा. विड्थ भी सेम रहेगा
बट व्हाट इज हाइट ऑफ पीसीसी? विजिबल है? 0.15. 0.15. हाँ 0.15 हाइट इज 0.15 कितना आएगा बताओ? 2.388. 2.38 यस। अब मैं सेम इसको L2 भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन और पीसीसी में, कोई चेंज नहीं। जितना एक्सकवेशन होगा उतना का उतना पूरा पीसीसी होगा, सिर्फ थिकनेस विल बी चेंज, हाइट विल बी चेंज। ये वन वैसे रहेगा, अभी निकाले थे अपन ने 5.23, वो भी सेम रहेगा, वन भी सेम रहेगा, ओनली विथ डेप्थ विल बी चेंज 0.15 कितना आएगा ये बताओ? L2 के लिए कितना आएगा? 0.7845. 0.7845 यस। फिर S2 में S1 कॉपी कर लेता हूँ सेम वे में, है ना? सेम कॉपी किया मैंने S1 यहाँ पे, सेम कॉपी कर लिया। S1 कितने नंबर्स हैं? तो फिर ऊपर का ही कॉपी हो जाएगा, 3 नंबर्स है, एक का कितना है 2 3 है, 1 है, बट हाइट डिफरेंट है 0.15। ठीक है, कितना आएगा देखो S1? 1.4535. 1.4535 यस। अब S2 देखो, S2 भी सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 2.73। S2 के नंबर्स कितने हैं वो इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर्स है। ठीक है, 2.73 नंबर, एक की वैल्यू हो गई 1 हो गया, और 0.15 हो गया, कितना आएगा देखो S2? 0.819. 0.819 यस। दैट मीन्स पीसीसी भी मैंने निकाल लिया जिसका डेप्थ डिफरेंट था, तो क्वांटिटी कितना होगा इसका बताओ? दिस 5.445. दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, 5.445। 445. ठीक है, तो थोड़ा सा शायद सही होगा, 5.445। ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यस 5.445। ठीक है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज करेक्ट। ठीक है, ये दो ऑलरेडी प्रीवियस में भी कवर किए थे अपन ने, वही चीज फास्ट में कवर कर ले रहे। अब यूसीआर फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का अपन सेम रहेगा। इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट स्टेप के विड्थ और हाइट कितना रहेगा, देखो यूसीआर का फिगर देखो सेक्शन में, यूसीआर का हाइट और वेट कितना रहेगा? वेट कितना रहेगा? 0.6 रहेगा दोनों दोनों तरफ है ना, विथ भी 0.6 है और हाइट भी 0.6 है फॉर फर्स्ट स्टेप। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेप हाइट? सेकंड स्टेप हाइट बताओ, हाइट ऑफ सेकंड स्टेप। 1.2 मीटर। नहीं नहीं, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, देख देखो 1.3 मीटर। बताओ कितना आएगा? यूसीआर सेकंड स्टेप हाइट इज इंपॉर्टेंट। 1.4. यूसीआर सेकंड स्टेप हाइट इज 1.3 मीटर। 1.3। और किसी का कोई आंसर? 0.5. सेकंड स्टेप यूसीआर हाइट, अच्छा हाइट निकालते वक्त ये फिगर देखो, सेक्शन फिगर में देखो, ग्राउंड वॉल, सर ग्राउंड वॉल 1.25 रहेगा। यस 1.25 मीटर। नहीं 1.25 ओके 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 1.25. 1.25 1.25 yes 1.25 is correct. How we have calculated 1.25? टोटल 1.1 बिलो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और अबव ग्राउंड लेवल है 0.9। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये दो चीज क्लियर हो गई कि बिलो ग्राउंड लेवल अप टू बॉटम तक कितना हाइट है 1.1 है, और अबव ग्राउंड लेवल का हाइट है 0.9। ठीक है, इसमें ये दो हाइट्स मेरे पास गिवन था, 1.1 में से अगर मैं 0.15 माइनस करता हूँ और 0.6 माइनस करता हूँ, तो 1.1 माइनस 0.6 एंड माइनस 0.15 कितना होगा बताओ? कितना होगा बताओ? ये बिलो ग्राउंड लेवल का, सिर्फ बिलो ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल कितना होगा? 0.35। 0.35. ठीक है, तो बिलो ग्राउंड लेवल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बिलो
ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल का ओनली यूसीआर। अभी मैं फर्स्ट स्टेप नहीं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि वो चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो मैं सेकंड स्टेप का ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और उसी का कैलकुलेशन अपन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है यूसीआर। सेकंड स्टेप का लिख रहा हूँ मैं बिलो ग्राउंड लेवल का कैलकुलेशन। बिलो ग्राउंड लेवल का कैलकुलेशन कैसा होगा, 1.1 होगा टोटल, जो इनडायरेक्टली गिवन था, 0.6 माइनस हो जाएगा, और 0.15 माइनस होगा, ऐसा करके बनेगा ये 0.35। बट ये बिलो बिलो ग्राउंड है। नेक्स्ट अबव ग्राउंड भी है मेरे पास, तो अबव ग्राउंड कैसा है, तो अबव ग्राउंड इज टीआर, ग्राउंड इज टीआर शॉर्ट फॉर्म है उसका। अबव ग्राउंड इज 0.9, ठीक है। तो अबव ग्राउंड कितना है, 0.9। इसके वजह से टोटल हाइट ऑफ यूसीआर फर्स्ट स्टेप इज, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ height is equals to 0.35 plus 0.9, that is equals to 1.25. 25. Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. और दूसरे लोग का कोई आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास? Yes, sir. Yes, sir. हाइट कैलकुलेशन समझ में आया यूसीआर सेकंड स्टेप का? सुमेरा, यस सर। शबनम, शुभम है, संदेश है, प्रियंका है, सब समझ में आ रहा है? Sir. हाँ, क्योंकि एक भी पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट है ना, 0.1 भी डिफरेंस आता है हाइट में, मतलब 100 mm, 100 mm इज 0.1 मीटर। तो 0.1 का भी हाइट में या फिर विड्थ में या फिर लेंथ में डिफरेंस होता है, तो कंप्लीट कैलकुलेशंस विल बी रॉन्ग। आई एम रिपीटिंग, है ना, 0.1 का डिफरेंस भी होता है तो द कंप्लीट कैलकुलेशंस विल बी रॉन्ग, ठीक है ना। इसलिए बहुत प्रिसाइजली वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ एनी सेक्शन और लेंथ ऑफ एनी सेक्शन और हाइट ऑफ एनी सेक्शन, ठीक है। बहुत प्रिसाइजली आपको लिखना है, आपको मालूम करना है। थोड़ा सा भी डिफरेंस, 100 mm भी डिफरेंस हो गया, मतलब 0.1 का भी डिफरेंस हो गया, तो वो उसका थाउजेंड्स में आपको मतलब उसका एक्सपेंसेस लगेंगे, बियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपन, है ना, नहीं, थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ये सारा रेट से मल्टीप्लाई होगा। आगे जाके रेट एनालिसिस के भी चैप्टर्स आएंगे, है ना, तो ये क्वांटिटीज रेट से मल्टीप्लाई होगी। जब रेट से होगी तो थोड़ा सा भी चेंज रेट को भी चेंज कर देगा, रेट चेंज करेगा टोटल कॉस्ट चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो इसलिए बहुत प्रिसाइजली वी हैव टू फाइंड आउट हाइट और वेट और लेंथ ऑफ एनी सेक्शन, ठीक है। 1.24 भी नहीं लिख सकते आप, 1.26 भी नहीं लिख सकते, 1.20 भी नहीं लिख सकते। तो वी आर हैविंग द कैलकुलेशंस एज 1.25 meters. Is that clear to everyone? Yes. हाँ, अब Yes, L1 sir. एज यूजुअल, ठीक है ना, L1। अब मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा L1 का, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन। ओके, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ आप लोगों को बार बार, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ L1 कितना है, एज यूजुअल बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, 6.96 टोटल है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस। अब यहाँ पे विड्थ ऑफ सेक्शन सेकेंड स्टेप यूसीआर का कितना रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग में, सेकेंड स्टेप यूसीआर कैलकुलेशंस। तो यूसीआर का विड्थ बताओ कितना है सेकेंड स्टेप का, 0.45. 0.45 कितना आएगा, 0.96 प्लस 7.41. 41. 7.41 मीटर्स, ठीक है, आ गया 7.41। अब यहाँ पे विड्थ चेंज हो गया है, ठीक है। विड्थ कौन सा लिया आपने, 0.45, जिसका आप पूछ रहे हैं, जिसका कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसी का विड्थ बार बार आते जाएगा, चेंज होते जाएगा। लेंथ विल बी सेम 6.96, या भी जो भी लेंथ रहती है L1 L2 S1 S2 की सेम रहेगी, बस हर बार विड्थ चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूसीआर मैंने हाईलाइट भी कर दिया, 0.45 इज द विड्थ ऑफ द यूसीआर सेकंड स्टेप। ऐसे कितने नंबर्स है मेरे पास, कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, एक का भी निकाले अपन ने 7.41, ठीक है। अब उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, 0.5। 0.45. हाइट अभी निकाले थे ऊपर के स्टेटमेंट में, कितनी है
1 पॉइंट 1.25. कितना आएगा, कितना आएगा, 8.336. 8.336. यस 8.36336 आ गया। वैसे ही L2 का मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बट थोड़ा सा चेंज कर लूंगा L2 के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। L2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, अब विड्थ ऑफ सेक्शन में विड्थ यहाँ पे चेंज होते जाएगा। अब यहाँ पे विड्थ रहेगा 3, दैट इज 0.45, 0.45, तो 4.23 प्लस 0.45 कितना होगा, यस 4.68. 4.6 4.68. मीटर्स। ऐसे L2 कितने हैं अपने पास, 1. 1। 1. एक लेंथ अभी निकाले अपन ने 4.68, विड्थ सेम रहेगा, हाइट ऑफ यूसीआर भी सेम रहेगा, तो कितना आएगा 2.632, 2.6325. यस 2.6325. 2.25। ओके, S2 का फॉर्मूला मैं यहाँ से फिर से पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके अपन कर लेंगे उसको आंसर, है ना। तो यहाँ पे इसको एडिटिंग कर लेते हैं। 4.23 माइनस विड्थ ऑफ सेक्शन 0.45 होगा 3.78. 3.78। 78. ऐसे S1 नंबर्स कितने हैं, 3 नंबर्स है, एक का कितना है 3.78 है, 0.45 एज इट इज रहेगा, हाइट भी एज इट इज होगा, कितना आएगा बताओ, 6.3787. 3787, यस करेक्ट। अगेन S2 में फिर से लेता हूँ कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे यहाँ पे, माइनस 0.45, 0.45, 3.73 माइनस 0.45, 3.28. 3.28 3.28. मीटर्स। S2 कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है, ठीक है। एक का 3.28, अगेन सेम, दैट इज 0.45, अगेन सेम 1.25, कितना आएगा 3.69. 3.69। 3.69. एडिशन कर लो ये यूसीआर सेकंड स्टेप का, ओनली सेकंड स्टेप, हाँ फर्स्ट स्टेप अभी नहीं किया अपन ने, हालांकि फर्स्ट स्टेप के साथ होना था, बट वो फिर से रिपीट ना करते हुए अपन ने ओनली सेकंड स्टेप किया, ठीक है। कितना आएगा बताओ, 21.03. 21.0375. ठीक है। ये चीज़ सबकी क्लियर हो गई। फर्स्ट स्टेप मतलब ये एक्सकेवेशन भी कर लिया आपने, पीसीसी भी कर लिया, ग्राउंड का सेकंड स्टेप इज इम्पोर्टेंट, अपन ने सेकंड स्टेप से ही स्टार्ट किए थे, फर्स्ट स्टेप नहीं किया अपन ने, क्योंकि वो रिपीट हो रहा था सारी चीज़ें, मतलब ऑलरेडी ये डिस्कशन पहले भी हो चुका है, तो इसलिए वी हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद सेकंड स्टेप, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का भी कैलकुलेशन आएगा, बट वो अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉज मुरूम फिलिंग, मेरा जो आज का कंसर्न है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मुरूम फिलिंग, ठीक है ना, थोड़ा सा ये फोकस करना है, टाइम भी कम है अपने पास, तो मुरूम फिलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब मुरूम फिलिंग का थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, ठीक है ना। इमेजिन कैसा करना है कि ये सेक्शन एक दीवार का है, ओनली वन वॉल इज देयर एंड द सेक्शन इट हैज बीन गिवन फॉर दिस वन वॉल, ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये वन वॉल यहाँ पे भी है, प्लस इंटरमीडिएट में भी है, लिविंग रूम के बाजू में भी है, और बेडरूम के लास्ट में भी, मतलब ये वॉल हर जगह रिपीट हो रही है, ठीक है, हर जगह रिपीट हो रही है, ये चीज क्लियर है। ये सेक्शन ऑफ वॉल इट इज रिपीटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, वेदर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में ये सेक्शन की जो है वो सबके लिए सेम है, ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट चीज, व्हाट इज द हाइट ऑफ मुरूम फिलिंग, बोल्डर मुरूम फिलिंग की हाइट कितनी है बताओ, 0.8 मीटर। 0.8, ठीक है, क्योंकि 0.9 टोटल है ग्राउंड से ऊपर में, 0.9 टोटल है ग्राउंड से ऊपर में, बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, पीसीसी 100 mm थिक इन सीमेंट कंक्रीट 148 इन प्लिंथ। क्या मतलब, ये छोटी सी जो एक लाइन दिख रही है, बहुत माइनर जो लाइन दिख रही है डॉटेड के साथ में, वो है 100 mm का पीसीसी, और उसके नीचे में बोल्डर फिलिंग है। मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली हाइट ऑफ बोल्डर इट हैज बीन गिवन इन दिस सेक्शन एज 0.8 मीटर्स। ये क्लियर है सबके लिए आइडिया, ये आइडिया सबके लिए क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. हो गया। अब विड्थ क्या रहेगा उसका, मुरूम फिलिंग होता कहाँ पे,
रूम फिलिंग इट इज कैरिड आउट विद इन द रूम, ठीक है। ये आपको सेक्शन ही बता रहा है कि रूम फिलिंग रूम के अंदर होगा, रूम के अंदर होगा। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन जब भी करते हैं आप, जब भी पीसीसी मतलब होता है अपने पास प्लिंथ बीम में, जब भी हम पीसीसी लेइंग डाउन ऑफ पीसीसी एट द प्लिंथ लेवल, हाँ प्लिंथ लेवल में, तो प्लिंथ लेवल में पीसीसी होता है, तो ये भी रूम के अंदर होता है और रूम फिलिंग भी रूम के अंदर होता है, ठीक है। बट बट मेरा रूम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये मेरे पास देखो विंडो है और विंडो के ऊपर छज्जा है और विंडो की ओपनिंग है। मेरा रूम एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मेरा रूम फिलिंग ऑफसेट के साथ स्टार्ट हो रहा है। ये आइडिया क्लियर है, ये आइडिया क्लियर है सबके लिए। मेरा रूम, ये जो रूम डायमेंशन है 3/4 मीटर्स, अगर देखा जाए तो ये विंडो की जो सेक्शन दिख रही है छज्जे के साथ वाली, वो लाइन मेरी एक्चुअल में 3/4 मीटर्स की रूम डायमेंशन है, ठीक है ना। ये बॉक्स अगर बन गया यहाँ पे तो ये 3/4 का यह बॉक्स बनेगा, ठीक है। बट रूम मेरा रूम के एकदम अंदर में वॉल से लग के नहीं है, वॉल से छोड़ के है, वॉल को छोड़ के है। कितना छोड़ के है, तो ऑफसेट है। कितना ऑफसेट है वो कैसे डिसाइड होगा बताओ। फाउंडेशन की विड्थ से वॉल की थिकनेस माइनस कर देंगे। हाँ वॉल थिकनेस, मतलब कैसा है देखो, नीचे में सेकंड स्टेप यूसीआर देखो, सेकंड नीचे देखना पड़ेगा और ऊपर देखना पड़ेगा। नीचे देखो 0.45 है नीचे का सेकंड स्टेप यूसीआर और ऊपर है 0.23 है, ऊपर 0.23, नीचे में यूसीआर 0.45 है, ऊपर में 0.23 है। दैट मीन्स इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो बनेगा ऑफसेट। बट क्या हो रहा है कि अगर मैं समझो 0.45 माइनस करता हूँ 0.23 से, तो ऑफसेट दोनों तरफ है दोनों तरफ। लेफ्ट साइड है, मतलब मेरे प्लॉट के बाहर में भी है, मेरे रूम के बाहर भी है ऑफसेट और अंदर में भी ऑफसेट है। बट मैं कंसिडर करूंगा अंदर का ऑफसेट, मतलब जो भी मेरा डिफरेंस आएगा 0.45 माइनस 0.23 डिवाइडेड बाई 2, 0.45 minus 0.23 divided by 2. Why 2? Because there is an offset inside and there is an offset outside. तो मैं कैलकुलेशंस करते वक्त इनसाइड ही कंसिडर करूंगा, इसलिए 0.45 नीचे का डायमेंशन, ऊपर का डायमेंशन 0.23, तो 0.45 माइनस 0.23 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 मतलब सब तरफ से जो आंसर आएगा वो सब तरफ से जब लेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो वो ऑफसेट पूरे साइड से होगा। तो ये चीज क्लियर हो रही है सबको। थोड़ा सा यस सर। सर एक और बात हो सर, रिपीट। इमेजिनेशन पावर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं असल में कैसा है कि ये चीज़ और पेंसिल और इससे भी कर सकता हूँ, मगर पेंसिल का पार्ट मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ। पेंसिल अगर होता है स्क्रीन पे तो मैं और एक चीज़ क्लियर आपको कर देता हूँ, वाइट बोर्ड। इसमें थोड़ा सा वाइट बोर्ड, मेरा वाइट बोर्ड दिख रहा है क्या नहीं, ये सॉरी असल में थोड़ा सा मुश्किल है। हम्म,
ओके, ये फिगर दिख रहा है आपको? उसमें देखो एक मैंने स्मॉल बॉक्स अंदर में इंसर्ट किया, ठीक है ना। ये जो मेरे पास प्लान था उसमें क्या किया है, एक स्मॉल बॉक्स मैंने इंसर्ट किया। एम आई ऑडिबल? यस। Yes, यस सर। sir. यस सर, यस सर, Yes, sir. तो ये जो बॉक्स इंसर्ट किया मैंने, ठीक है ना, तो ये बॉक्स में क्या हो रहा है कि वी आर फिलिंग द मुरुम। मुरुम क्या होगा यहाँ पे, ये बॉक्स में फिल होगा, ठीक है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो ये बॉक्स अंदर में है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी मतलब ये बॉक्स एक्चुअल में यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या होगा, ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको, इसमें मुरुम फिलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे मुरुम फिलिंग होगा जिसमें एक्चुअल डायमेंशन मेरे पास 3/4 मीटर्स है, बट मेरे पास जो है मुरुम फिलिंग 3/4 मीटर्स की पूरे रूम में मुरुम फिलिंग नहीं होगा, ठीक है ना। पूरे रूम में मुरुम फिलिंग नहीं होगा, बट अंदर में होगा। कितना अंदर में होगा तो वो डिसाइड करेगा ये सेक्शंस, ठीक है ना। ये जैसे बॉक्स दिख रहा है ना, ऐसी सेम पैटर्न में मुरुम फिलिंग होगा, हर रूम में ऐसी होगा। मतलब ये ऑफसेट रहेगा ऑल साइड्स ऑफ वॉल, सब तरफ से छूटा रहेगा। पूरा एक्चुअल जितना रूम है मेरे पास उतना मेरे पास नहीं होगा, ठीक है ना कुछ मेरा पास मतलब वॉल से छूटा रहेगा। तो कितना छूटा रहेगा, ऑफसेट कितना रहेगा, तो नीचे का बेस देखना है 0.45, नीचे में बेस है, सेकेंड स्टेप यूसीआर का विड्थ है, और ऊपर का विड्थ है 0.23, ठीक है। तो ये दोनों विड्थ माइनस करो सबसे पहले। 0.45 माइनस 0.23 कितना होगा, 0.45 माइनस 0.23 92। 0.22. 0.22। अब ये कंप्लीट ऑफसेट हो गया, मतलब पूरा ऑफसेट आया। बट अगेन ये सेक्शन क्या बोलता है कि आपने जो ऑफसेट निकाले थे 0.45 और 0.23, जिसमें दो ऑफसेट इंक्लूड है, एक अंदर की तरफ ये जो एरो के साथ दिख रहा है वो अंदर की तरफ ऑफसेट है, और एक तो बाहर की तरफ है। मतलब ये जो डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू के बाहर में जो आएगी वॉल, जो मेरे बिल्डिंग के बाहर में है, मतलब ये वॉल के बाहर में ऑफसेट है, तो वो एक ऑफसेट आएगा और एक ऑफसेट अंदर आएगा। बट वाइल कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ मुरूम फिलिंग, मैं अंदर का ऑफसेट लूंगा। तो मैंने जो निकाला 0.45 माइनस 0.23 दैट इज 0.22, वो कंप्लीट ऑफसेट था दोनों मिला के। बट मेरे कैलकुलेशंस के लिए मैं अंदर का लूंगा ऑफसेट, तो अंदर का ऑफसेट लूंगा इसलिए 0.22 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 में डिवाइड हो रहा, वो दोनों तरफ इक्वल डिवाइड हो रहा, राइट साइड भी और मतलब अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है। इसलिए 0.22 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 0.11। तो 0.11 is the offset of that मुरूम फिलिंग from all the sides। तो ये मैंने बॉक्स बनाया जो अंदर में, इसमें मुरूम फिलिंग होगा। और ये मुरूम फिलिंग कैसा होगा कि एक्स डायरेक्शन में भी 0.11 छोड़ना पड़ेगा आपको, अलॉन्ग दिस एक्स डायरेक्शन में भी 0.11 छोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप एंड डाउन, सब तरफ से आपको 0.11 छोड़ के आपको मुरूम फिलिंग करना है। you have to leave 1.11 ऑफसेट फॉर मुरूम फिलिंग, ठीक है ना। तो ये 0.11 आपको छोड़ के मुरूम फिलिंग करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर है मेरे पास, जो मैंने अभी जो आपको मतलब ये किया हूँ, तो वो कैलकुलेशंस में भी है अपने पास, ठीक है। ये कैलकुलेशंस भी बता रहा है कि यहाँ पे मुरूम फिलिंग कैसे निकाले आपने, ठीक है। ये मुरूम फिलिंग देखो, ये स्टेटमेंट है। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट सेज, offset for murum filling, that is for murum filling is equals to 0.45, that is the second step UCR, ऊपर का that is cement masonry, that is brick masonry in cement mortar 0.23, that is equals to 0.22। बट ये टोटल ऑफसेट था, बट अंदर और बाहर का ऑफसेट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो ऐसा बनेगा वो 0.11 मीटर्स, 0.11 मीटर्स, ठीक है। तो दिस 0.11 मीटर्स विल बी फ्रॉम ऑल साइड्स, सब तरफ से आएगा, हर साइड से 0.11 आएगा, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन हाउ दिस 0.11 विल बी यूज्ड फॉर मुरूम फिलिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस। Yes, sir. Yes, sir. 0.11 कैसे लिए समझ में आया थोड़ा सा? तो मेरा शुभम, संदेश, Yes, sir. 0.11 ऑफसेट कैसा आया समझ में आया? ठीक है। पूजा, अब मैं 0.11 के हिसाब से मुरूम फिलिंग करूंगा, ठीक है। तो अब एक्चुअल में मैं लिखते वक्त कैसे लिखूंगा वो बताओ मेरे को, 0.11 लिखूंगा कैसा मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, 0.11। और ऊपर की कैलकुलेशंस अपने अभी फिल वक्त में यूज़ नहीं हो रही है, तो स्पेस नहीं होने की वजह से वी विल हाइड दिस, ठीक है। यस। और यहाँ पे और ज़्यादा इंसर्ट कर देता हूँ।
ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर 4 एज मुरुम फिलिंग। मुरुम फिलिंग। अब मुरुम फिलिंग कैसा रहेगा बताओ, उसका डायमेंशंस कैसे यूज होगा, मुरुम फिलिंग कैलकुलेशंस कैसे करेंगे आप बताओ। हाउ वी विल फाइंड आउट द कैलकुलेशंस फॉर मुरुम फिलिंग। सर बेडरूम के एरिया निकाल के ऑफसेट का एरिया उससे माइनस कर देंगे। अब ये कैसा होगा, मुरुम फिलिंग विल बी कैरिड आउट इन मीटर क्यूब तो रहेगा, बट अब बेडरूम के अलग अलग रूम्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको। अब इसमें एज सच लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज नहीं होगा, सिंपल एलबीएच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, बस इतना काम करना है आपको। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंपल में विदाउट एनी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड वी विल फाइंड आउट द मुरुम फिलिंग। अब मुरुम फिलिंग में सबसे पहला मैं बेडरूम स्टेट करता हूँ, ये जो लिखा था ना थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ उसको भी टेम्पररी वे में। अब मैं सबसे पहले किचन का लिखता हूँ यहाँ पे, मुरुम फिलिंग इन किचन, ठीक है। अब किचन के लेंथ में मुरुम फिलिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू ओनली लेंथ, ठीक है। अब लेंथ कितना है मुरुम फिलिंग के लिए, देखो किचन की एक्चुअल लेंथ कितनी है इनर टू इनर डायमेंशन में 3 मीटर्स है, ठीक है। 3 मीटर्स है किचन की, 3 मीटर्स है। अब दोनों तरफ ऑफसेट होगा तो क्या होगा, -0.11 एक साइड हो गया, -0.11 दूसरी साइड हो गया। कितना आएगा लेंथ वाइज बताओ, लेंथ ऑफ 2.78. 2.78. 7-8 होगा रिवाइज लेंथ ऑफ किचन। किचन का ऑफसेट माइनस करेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर मैं इसको फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर माइनस करेंगे 3 मीटर्स में तो कितना होगा, 3 मीटर्स, लेफ्ट साइड एक ऑफसेट है 0.11 का और राइट साइड एक ऑफसेट है 0.11 का, ऐसा बन जाएगा 2.78 रिवाइज लेंथ ऑफ किचन, ठीक है। रिवाइज लेंथ ऑफ किचन। वैसी किचन का विथ डब्ल्यू, विथ, और उसका पूरा लिख दो, तो थोड़ा सा लिखते वक्त पूरा लिख दो विथ। अब विथ कितना है देखो किचन का, मैं फिर से इसको नीचे लेकर, विथ कितना है किचन का 4 मीटर्स, अगेन माइनस 0.11 0.11 -0.11 कितना आएगा 3.78. 7-8, ठीक है। मतलब मैंने किचन का लेंथ भी निकाल लिया, किचन का विड्थ भी निकाल लिया, जहाँ पे मेरे को मुरूम फिलिंग करना है, हो गया, एक रूम का हो गया। ऐसे तीनों रूम का निकालना है, ठीक है। तो ये ऑफसेट दोनों तरफ से क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड भी उतना छोड़ना पड़ेगा और राइट साइड भी उतना छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही विड्थ वाइज भी ऊपर भी वैसा छोड़ना पड़ेगा, नीचे भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा रिवाइज लेंथ ऑफ किचन हो गया 2.78 और रिवाइज विड्थ ऑफ किचन हो गया 3.78। ऐसे कितने किचन है मेरे पास, एक किचन है जिसकी लेंथ कितनी है किचन की 2.78, वैसी विड्थ कितनी है वही किचन की 3.78 जिसका मैंने अभी निकाला था, ठीक है। अब हाइट ऑफ मुरूम फिलिंग कितना है, पॉइंट 0.8. 8, ठीक है। तो कितना आएगा 8.40672, ठीक है। तो एक लाइन में लिखे, बट अपने कैलकुलेशंस दो लाइन में करें, लिखते वक्त में लेंथ भी लिख लिए, विड्थ भी लिख लिया और हाइट ऑफ मुरूम फिलिंग भी लिख लिया। तो कितना आएगा 8.40672। ऐसा मुरूम फिलिंग अब होगा मेरे पास ऊपर के बेडरूम में, नीचे का नहीं लिखे। अब पहले ऊपर का बेडरूम लो, उसी के बाजू में ऊपर में जो है बेडरूम। अब बेडरूम का लेंथ और विड्थ बताओ, ठीक है ना। बेडरूम, अब बेडरूम का लेंथ क्या देखो 3.5 है देखो ऊपर में 3.5, दोनों तरफ ऑफसेट होगा। अब ये चीज मैं पेस्ट ऊपर करता हूँ 3.5 के ऊपर में, तो दोनों तरफ ऑफसेट आ गया, लेफ्ट साइड ऑफसेट राइट साइड ऑफसेट। तो 3.1 माइनस, इसको नीचे में कर लेता हूँ, एक्चुअल में एक ही लाइन में था, ठीक है। 3.5 माइनस 3.5, हाँ 3.5 माइनस 0.11 माइनस 0.11 कितना होगा 3.28। वैसे 4 मीटर्स के बेडरूम विड्थ वाइज में तो कितना होगा 4 माइनस 0.11 कितना होगा 3.78। ऐसे बेडरूम कितना है अगेन 1 है, उसकी लेंथ कितनी है बेडरूम की 3.28 है। वैसे विड्थ ऑफ देयर इज 3.78 और हाइट कितना है अभी निकाले थे अपन ने 0.8, कितना आएगा इसका, यस 9.9187. 9.9187,
ठीक है, तो इट विल बी 9.9187। अब सेकंड बेडरूम, और एक बेडरूम है मेरे पास, तो बेडरूम सेकंड, ठीक है ना, बेडरूम नीचे की तरफ, सॉरी बेडरूम नहीं है मेरे पास, लिविंग रूम है, ठीक है, उसका नाम लिविंग रूम, लिविंग रूम। अब लिविंग रूम का अगेन लेंथ कितना है 4 मीटर्स और विड्थ कितना है लिविंग रूम का 3.5, तो 4 मीटर्स में भी 2 बार 0.11 माइनस होगा और 3.5 के विड्थ में भी लिविंग रूम के 2 बार में 0.11 माइनस होगा, तो अगेन द सेम 4 माइनस 0.11 हो जाएगा यहाँ पे। और ये सेकंड चीज मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कितना आएगा इसका लेंथ 4 माइनस दिस 0.11 एंड माइनस 0.1, इट विल बी 3.78 एंड हाउ मेनी नंबर्स विड्थ में क्या होगा 3.5 एंड दिस, तो इट विल बी 3.28। ऐसे कितने लिविंग रूम है, एक का कितना है 3.78 लेंथ, विड्थ कितना है 3.28 और हाइट कितना है 0.8, कितना आएगा 9.9187। 9.9187, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हर एक रूम का सेपरेटली रूम फिलिंग आपको निकालना है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है क्या सबके लिए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुरूम फिलिंग, पीसीसी, फ्लोरिंग, ये सबके लिए सेम कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये पीसीसी के लिए भी यही कंसेप्ट आएगा ऑफसेट का, मगर वो डिसाइड करेगा आपका सेक्शन फिगर। सेक्शन फिगर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, सेक्शन आपको प्रॉपरली रीड करना है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, ठीक है, मुरूम फिलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीसीसी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्लोरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सारी चीजें आपको सेक्शन क्लियर करेगा। तो सेक्शन में बताया गया कि मुरूम फिलिंग ऑफसेट से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैंने ऑफसेट निकाला उसका 0.1, ठीक है ना। अगर मुरूम फिलिंग अगर सपोज ऑफसेट से नहीं होता था, कोई और जगह से होता था, या फिर ऑफसेट कम होता था, या फिर वॉल के लाइन में स्टार्ट होता था, तो मैं वॉल का इनर टू इनर डायमेंशन लेके खत्म हो जाता था, 3/4, 3.5/4 एंड 4/3.5, डायरेक्टली ये जो कैलकुलेशन जो दिख रहे हैं आपको लाइन प्लान में, वो सारे लेके मेरा काम आसान होता था। मगर मैंने सेक्शन की लाइन देखा, सेक्शन लाइन एक्सप्लेन कर रहा है कि मुरूम फिलिंग ऑफसेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉपरली आपको सेक्शन फिगर वी हैव टू सी इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। अब ये एडिशन कर लेता हूँ मैं, इसका एडिशन बताओ कितना आएगा। 28.2441। ओके 28.244, 28.244, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, yes 28.24, yes 28.24। In this way, in today's lectures, we have gone through the different concepts. Most important concept we have gone through the मुरूम फिलिंग, ठीक है ना। इसको हाईलाइट करता हूँ, दिस मुरूम फिलिंग कंसेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आज के लेक्चर्स में वी हैव सीन हाउ टू फाइंड आउट द ऑफसेट, ऑफसेट फिर कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे अंदाज में कैलकुलेट होगा, रूम के अंदर में कैसा उसको कैलकुलेट करेंगे, ये सारा जो कंसेप्ट है वी हैव स्टडीड इन टुडेज लेक्चर्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर सबको समझ में आया है? यस एवरीवन?